आजादी दे इस दिहाड़े दे उत्ते सब तो पहला न्यूज़ 18 दे वल्लों सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत-बहुत मुबारक। जहां नानक का लंगर है, जहां भक्ति है मीरा की, सुबह से शाम तक हम उस चमन की बात करें। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब भाई। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਇਮ, ਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹ। ਹੋਂਦ ਸਦਕਾ ਹੀ बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्या बात। सरहद उत्ते मरदे होए वीर सिपाही कहंदे ने। अच्छा है। सरहद उत्ते मरदे होए वीर सिपाही कहंदे ने। धरती मां ते वार देंगे जिन्ने भी सा रहंदे ने। क्या बात है। ये दुश्मन जान ले अच्छी तरह इस मुल्क के बच्चे, क्या बात। अच्छा है। दुश्मन जान ले अच्छा है भाई, अच्छी बहुत तरह बढ़िया। इस मुल्क के बच्चे खिलौनों से कहीं पहले कफन की बात करते हैं। क्या बात। किवाड़ दरीचा याद आया है, बाग बगीचा याद आया है, ਵਾਹ सौंधी मिट्टी याद आई है, पहली चिट्ठी याद आई है। सत श्री अकाल, नमस्कार। गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल। आज़ादी दे इस दिहाड़े दे उत्ते सब तो पहला न्यूज़ 18 दे वल्लों सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत-बहुत मुबारक। ये दिन बहुत खास है, हर साल हुंदा है, इस बार होर भी खास है। इस बार इस करके खास है क्योंकि पूरी दुनिया ਨੂੰ देश ने दस्सिया कि किवें ਅਸੀਂ अपनी सुरक्षा करनी जाणदे ਹਾਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਅੱਖ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰ ਮਿਟਣ ਵਾਲੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਕਵੀ ਜਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਚਰਨ ਜੋਗੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਰਵੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਸਰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਜ਼ਾ ਬਿਲਾਲ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨ ਗੋਤਰਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨ ਗੋਤਰਾ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਰ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਰਚਨਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁਝ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਏਗੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਤੋਂ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜੀ ਭਰ ਜੀਆ ਮੈਂ मन से मरूं लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। क्या बात। उन्होंने भी कहा तू दबे पांव चोरी छिपे ना। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਦਬੇ ਪਾਂव चोरी छिपे से ना आ, सामने वार कर फिर मुझे आजमा। क्या बात, बहुत बढ़िया। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਗੁਰਚਰਨ ਜੋਗੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੌਰਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤਰਾਨੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 2 ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ। इरशाद जी। इरशाद। ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਿਆ ਅਜਿਹੇ, वाह। ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਬਤ ਆਕਾਸ਼, वाह। ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਿਆ ਅਜਿਹੇ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਬਤ ਆਕਾਸ਼, ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੇ ਲੋਕ ਐਸੇ वाह। ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜਿਹੇ, क्या क्या बात। बात। ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਜਿਹੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਵਾਰ ਦੇਵਣ ਲਾਲ ਵੀ आहा, ਜਦ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ, क्या बात क्या है। बात। ਵਾਰ ਦੇਵਣ ਲਾਲ ਵੀ ਜਦ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਜਿਗਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਹੇ, वाह, क्या बात है, ਕਿਹੜੀਆਂ क्या ਮਾਵਾਂ बात। ਦੇ ਜਿਗਰੇ साड़ियाँ ਸਾਡੀਆਂ मामा ਮਾਵਾਂ जी। ਜਿਹੇ। बहुत खूब, बहुत ਔਰ बढ़िया। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਜ਼ਲ ਪੇਸ਼ੇ ਖਿਦਮਤ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਇਮ, क्या बात है।
ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਇਮ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਸਾਰਾ ਬਾਲ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਸਾਰਾ ਬਾਲ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਮ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਾਇਮ। अरे वाह ਤੁਹਾਡੇ ਦਮ ਤੇ वाह ਹੀ ਹੈ वाह वाह ਹੁਣ बहुत ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਾਇਮ। बहुत खूबसूरत। ਔਰ ਨਾ ਸਿੰਜਦੇ ਜੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਰਝਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। क्या बात है। ਨਾ ਸਿੰਜਦੇ ਜੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੁਰਝਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਮ ਤੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਕ ਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਕਾਇਮ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਦਮ ਤੇ ਬੜੀਆ। ਹੀ ਸਾਡੀ ਮਹਿਕ ਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਕਾਇਮ। ਔਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਨੂਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਆਹਾ, ਕੀ ਬਾਤ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਨੂਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਇਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਇਮ। ਔਰ ਗੌਰਵ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। अरे वाह ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ क्या बात है। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਕਾਇਮ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ। ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਬੜੀਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆ। ਸਾਡਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਕਾਇਮ। ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਂਦ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਇਮ। ਵਾਹ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਹ। ਹੋਂਦ ਸਦਕਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਕਾਇਮ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਬਹੁਤ क्या ਵਧੀਆ, बात। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। जोगी जी क्या कहने, वाह वाह। जबरदस्त। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਗਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਗਜ਼ਲ ਤੋਂ ਗਜ਼ਲ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਰਵੀ ਜੀ ਔਰ ਗੋਤਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ, ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਸੋਲਜਰਸ ਨੇ ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬਿਲਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਜ਼ਰੂਰ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੌਰਵ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਤਰਾਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ, ਮਤਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ। ਜੀ चंद अशार मैं पढ़दा ही कि न शोहरत की तवक्को है, आहा, न धन की बात करते हैं। क्या बात है। न शोहरत की तवक्को है, न धन की बात करते हैं। हमारे जैसे मतवाले वतन की बात करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत क्या बढ़िया। बात, न जिंदाबाद। शोहरत की तवक्को है, न धन की बात करते हैं। हमारे जैसे मतवाले वतन की बात करते हैं। और ये शेर और पूरा भारत इस शेर में समा जाएगा कि जहां नानक का लंगर है, आहा, जहां नानक का लंगर है, जहां भक्ति है मीरा की। वाह क्या बात है। न शोहरत की तवक्को है, न धन की बात करते हैं। हमारे जैसे मतवाले वतन की बात करते हैं। जहां नानक का लंगर है, जहां भक्ति है मीरा की। सुबह से शाम तक हम उस चमन की बात करते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब हमजा भाई। जहां नानक का लंगर है, जहां भक्ति है मीरा की। सुबह से शाम तक हम उस चमन की बात करते हैं। और अभी जो पूरी दुनिया ने देखा कि जब हम पर कोई बात आती है, हमारी वतन पर, हमारी इज्जत आबरू पर बात आती है, तो हम किस तरह से जवाब देते हैं कि जहां नानक का लंगर है, जहां भक्ति है मीरा की। सुबह से शाम तक हम उस चमन की बात करते हैं। और ये दुश्मन जान ले अच्छी तरह इस मुल्क के बच्चे। आहा, क्या बात, अच्छा ये है। दुश्मन जान ले अच्छा है भाई, अच्छी बहुत तरह बढ़िया। इस मुल्क के बच्चे खिलौनों से कहीं पहले कफन की बात करते हैं। क्या बात ये है। दुश्मन जान ले अच्छी तरह बहुत इस बढ़िया। मुल्क के बच्चे बहुत खिलौनों बढ़िया। से कहीं पहले कफन की बात करते हैं। और ये भी कुछ अशार मुलायजा करें कि भले ही मुश्किलों में हो, शिकायत हम नहीं करते। अरे वाह, भले ही मुश्किलों में हो, शिकायत हम नहीं करते। कभी भी मुल्क से अपने बगावत हम नहीं करते। अरे वाह, आहा, क्या बात है। क्या बात। भले ही मुश्किलों में हो, शिकायत हम नहीं करते। कभी भी मुल्क से अपने बगावत हम नहीं करते। और किसी भी माँ के बच्चों से
हमें नफरत नहीं लेकिन। हाँ कब भले ही मुश्किलों में हो, शिकायत हम नहीं करते। कभी भी मुल्क से अपने बगावत हम नहीं करते। किसी भी माँ के बच्चों से हमें नफरत नहीं, लेकिन जो भारत का नहीं उससे मोहब्बत हम नहीं करते। क्या बात है, अच्छा, बहुत बढ़िया, किसी बहुत भी बढ़िया। माँ के बच्चों से हमें नफरत नहीं, लेकिन जो भारत का नहीं उससे मोहब्बत हम नहीं करते। और ये भी देखें कि जर्रे जर्रे से यूं आती है चमन की खुशबू। वाह, जर्रे जर्रे से यूं आती है चमन की खुशबू, जैसे गालिब ने बिखेरी हो सुखन की खुशबू। क्या बात जर्रे है, जर्रे बहुत से बढ़िया, यूं बहुत आती है खूब। चमन की खुशबू, जैसे गालिब ने बिखेरी हो सुखन की खुशबू। और आप चाहें तो मेरा खून बहा कर देखें। जर्रे जर्रे से यूं आती है चमन की खुशबू, जैसे गालिब ने बिखेरी हो सुखन की खुशबू। और आप चाहें तो मेरा खून बहा कर देखें, कतरे कतरे में महकती है वतन की खुशबू। बहुत आप बढ़िया, चाहें बहुत तो बढ़िया। मेरा खून बहा कर देखें, कतरे कतरे में बहकती है वतन की। क्या क्या बात बात, क्या बहुत बात, शानदार, बहुत बहुत शानदार। बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। शानदार से शानदार। आपने गुरचरण जी और आपने महफिल को जमा दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और मैं रवि जी का रुख करूंगा। देखिए, हम बहुत मुस्कुराकर बात कर रहे हैं, लेकिन कफन में लिपटा हुआ शव अगर किसी के घर पहुंचता है तो वो स्थिति बिल्कुल अलग हो जाती है। मैं बहुत सारी, क्योंकि रोज खबरों का ही हमारा काम रहता है, तो बहुत सारी तस्वीरें ऐसी आती हैं जिसमें ये आप कहिए कि अंदाजा लगाना मुश्किल होता है कि ये परिवार इतना हौसला बांध कैसे रहा है खुद के लिए, कि उनका 24-25 साल का कोई बच्चा चला गया और वो सामने आकर सैल्यूट करते हैं उसकी शव को, उनकी बॉडी को, शहीद को। वो बहुत लाजवाब है। वो कई बार तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं उन तस्वीरों को देखकर। रवि, चलिए आगे बढ़ाते हैं हम आज आज़ादी के तरानों को। शुक्रिया गौरव साहब। सबसे पहले मैं न्यूज़ 18 का बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमें यहाँ बुलाया आज़ादी के तराने कार्यक्रम में। जैसा कि गौरव जी ने बात की कि पर्दे के पीछे वो सैनिक हैं, वो देश के जवान हैं जिनकी वजह से हम सुरक्षा में हैं। तो उन्हीं जवानों को एक समर्पित मेरा ये गीत है, पेश करता हूँ जी। कि रखवाले हैं हम भारत की आन बान और शान के, क्या बात है, कि रखवाले हैं हम भारत की आन बान और शान के, निडर जोशीले वीर सिपाही भारत देश महान के। क्या बात है, क्या बात है। होली हो या ईद दिवाली सरहद पे ही मनाते हैं। हाँ, क्या बहुत सही बात है। कि होली हो या ईद दिवाली सरहद पे ही मनाते हैं, अपने देश की मिट्टी से हम सच्ची प्रीत निभाते हैं। कि होली हो या ईद दिवाली सरहद पे ही मनाते हैं, अपने देश की मिट्टी से हम सच्ची प्रीत निभाते हैं। 65 और 71 में दुश्मन को सबक सिखाया था, 65 और 71 में दुश्मन को सबक सिखाया था। सिंदूर हो या कारगिल परचम हमने लहराया था, सिंदूर हो या कारगिल परचम हमने लहराया था। कर दिखाते हैं वो सब बैठे हैं जो ठान के, निडर जोशीले वीर सिपाही भारत देश क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला देखिए कि भ्रमित होके जब जब हमको दुश्मन ने ललकारा है, बिलाल भाई, कि भ्रमित होके जब जब हमको दुश्मन ने ललकारा है, तब तब हमने उनको उनके घर में घुस के मारा हाँ, है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मातृभूमि पर हमारा हर जर्रा कुर्बान है, मातृभूमि पर हमारा हर जर्रा कुर्बान है। झंडा ऊंचा रहे हमारा देश की ये तो शान है। वाह, वाह, वाह। सरहद पर खड़े हैं हम अपना सीना तान के, निडर जोशीले वीर सिपाही भारत देश महान के। रखवाले हैं हम भारत की आन बान और शान के, निडर जोशीले वीर सिपाही भारत देश महान के। और देखिएगा कि गोलियों की बौछारों में हम सीना तान खड़े रहते, कि गोलियों की बौछारों में हम सीना तान खड़े रहते, मौत को हंसकर गले लगाते सीमा पर अड़े रहते। हर सांस समर्पित मिट्टी को देश का कर चुकाते हैं, हर सांस समर्पित मिट्टी को देश का कर चुकाते हैं। शहादत को गर्व समझ के हंस हंस के पी जाते हैं, वाह वाह वाह। शहादत को गर्व समझकर हंस हंस के पी जाते हैं। तिरंगे में भी लिपट कर घर लौटे हम शान से, निडर जोशीले वीर सिपाही
भारत देश क्या महान बात। के, रखवाले हैं हम भारत की आन बान और शान के, निडर जोशीले वीर सिपाही भारत देश महान के। बहुत बढ़िया जी, बहुत बात बढ़िया, है रवि बहुत भाई, बढ़िया। वाह, बहुत वाह, अच्छे, बहुत अच्छे। देखिए आपने इन पंक्तियों में मेरे को लगता है सबको याद दिला दिया। 65-71 भी आ गया, करगिल भी आ गया, और जहन में सर्जिकल स्ट्राइक भी आ गई, एयर स्ट्राइक भी आ गई, ऑपरेशन सिंदूर भी आ गया। अच्छा, मैं चलिए आगे बढ़ता हूं। मैं आपसे एक किस्सा साझा करता हूं। थोड़े दिन पहले जब विजय दिवस करगिल का मनाया जा रहा था, तो मैं बात कर रहा था कैप्टन विक्रम बत्रा के फादर साहब के साथ। देखिए उनका जज्बा, उनकी उम्र, उनके बेटे को गए हुए 25-26 साल हो चुके हैं, क्योंकि 99 में वो शहीद हुए कैप्टन विक्रम बत्रा। उनके जज्बे को सलाम है। गोत्रा जी, मैंने उनसे बात की तो अपने बेटे को, जो बहुत ही यंग एज में चला गया, उसको विक्रम जी बुलाते हैं। मतलब मेरा सवाल था कि हम जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को जी नहीं कहते, लेकिन बहुत शानदार थे। उनसे मैंने बात की, बहुत कॉन्फिडेंट। वो कहते कि मैं पिछले 25 साल में उस जिंदगी को जिया हूं कि जो शायद मैंने कल्पना नहीं की थी। और मैं जी इसलिए उनको बुलाता हूं क्योंकि वो जो थे वो दुनिया में मेरे लिए कोई नहीं बन सकता। बहुत बहुत बाकमाल उनका हौसला देखने को मिल रहा था। मैं इसलिए मैंने जिक्र कर दिया। आपने जिक्र किया कि गोलियों की बौछार में हम डटे रहते हैं, सीना तान कर। एग्जैक्टली यही चीजें करगिल में हमने फेस की। मैं जब उनसे बात कर रहा था, अच्छा, मैंने जनरल वीपी मलिक जी से भी बात की, जो उस समय अध्यक्ष थे हमारी फौज के। तो उनकी तरफ से भी ये था कि जो जवान सामने है ना, सामने से गोली चल रही थी, ऊपर से एक कंकर फेंका हुआ गोली का काम कर रहा था। करगिल में ऐसी स्थिति थी। चलिए आगे बढ़ाते हैं, बातचीत हमारी जारी रहेगी। तो गौरव जी, आपकी तरफ रुख करते हैं। आपने जो बताया, मेरे एक क्लास फेलो स्कूल के होते थे जो फौज में थे, जी जो शहीद हो चुके हैं। जी। सो और मेरे मामा जी 71 की लड़ाई में थे फौज में। सो फौज का बड़ा क्लोजली हमने देखा है। वो अलग बात है कि पाकिस्तान ढीठ है, मानता नहीं है कुछ सालों के बाद, पर जो हिंदुस्तान के सिपाही हैं वो हर बार उनको पिछली बार से करारा जवाब देते हैं। बहुत बिल्कुल बिल्कुल बेशक। और ये अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जी उस पर मैंने कुछ कहने की कोशिश की थी। जी जी सर, जरूर। युद्ध पोतों की सलामी द्वंद का हुंकार है, युद्ध पोतों की सलामी द्वंद का हुंकार है, दुश्मनों का चीर सीना करना अब संहार है। मातृभूमि ने पुकारा वीर तुम आगे बढ़ो, शत्रुओं को कर पराजय विजय तुम अर्जित करो। वाह, शौर्य तेरा है आभूषण मृत्यु तेरी प्रेमिका, रख हथेली शीश अपना वीर आगे बढ़ चला। वाह, तेरा साहस देखकर दुश्मन का सीना फट पड़ा, जन्मभूमि का प्रहरी सीमा पर डटकर खड़ा। राष्ट्र का प्रत्येक वासी करता जय जयकार है, मातृभूमि का सिपाही देश का श्रृंगार है। तू तिरंगे का है रक्षक, देश का है मान तू, तुझको भारत का नमन है, देश की है शान तू। बहुत देश बढ़िया, की है बहुत शान। बढ़िया। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत वाह शानदार, वाह जी वाह। शानदार से शानदार। मैं आपने ऑलरेडी जिक्र कर दिया कि जो आर्मी के परिवार क्या महसूस करते हैं, वो डेफिनेटली आपने जिक्र किया। तो थोड़ा बताइए कि परिवार 71 की जंग के बाद, मुझे लगता है कि आपको तो उस समय की जी, मैं तो पैदा 71 में हुआ 71 में, हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि उस बट समय- जो हम अपनी मैंने अपनी माँ से सुना है, या मैंने अपने मामा जी को देखा है, बाद में भी वो आर्मी में थे काफ़ी देर तक। तो वो जो जिंदगी है और जो उनके अंदर जज्बा होता है उन लोगों के अंदर, वो शायद हम लोग अपने अंदर कोशिश भी कर लें तो पैदा नहीं कर सकते, जितनी मुश्किलों में वो लोग आप रहते हैं। फैमिली का जिक्र कर रहे हैं। इवन फैमिली का, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन जैसे मेरे बाकी फैमिली मेंबर्स हैं जो उस टाइम पे थे, तो वो जो जब 71 की लड़ाई में आप साइचिन में बैठे हो और आपको खबर, उस टाइम तो ना मोबाइल ना कुछ होता था, तो आपको खबर भी दिनों के बाद आती है, तो वो दिन रात जो है कि पता नहीं क्या होगा, क्या बनेगा, वो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं किस स्ट्रेस में से। शायद उनके घर वालों की उम्र भी 10 साल कम हो जाती होगी जितना स्ट्रेस की वजह से। उन लोगों के ऊपर स्ट्रेस रहता था। देखिए, आज़ादी के तराने में हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये जो किस्से हैं ये भी एक तरह से उस पिक्चर को हमारे सामने लाकर रख रहे हैं।
कि जहां हम उस गहराई में उतर जाते हैं कि क्या सोच रहे होंगे परिवार के सदस्य। हल्का सा इमेजिन करने की भी कोशिश करें कि आपका बच्चा घर से बाहर गया हो और कह के गया हो कि मैं 7 बजे तक वापस आ जाऊंगा, 7:05 पे आपके दिमाग में चीजें आनी शुरू हो जाती हैं। अगर मैं गलत हूं तो कहिए। बिल्कुल जी, बिल्कुल। कि आप 7:30 तक 8 तक इंतजार करते हैं, उसके बाद 9-10 बजे तो पूरे परिवार में खलबली मच जाती है कि कहां चला गया, फोन को या मिलने कहां शुरू हो चली जाते गई। हैं कि सब कोई ना कोई तरीके से जानने की कोशिश करते हैं, और कितना बड़ा दिल जिगरा होगा उनका जो अपने बच्चों को उस सरहद पर भेज देते हैं। बहुत सलाम है सबको। आप अगर देख रहे हैं हमारे कार्यक्रम को, आपके परिवार और आप सबको बहुत सलाम है। गुरचरण जी आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हो रहा है, कुछ ऑपरेशन सिंदूर के साथ अगर जुड़ा हुआ कुछ हो जाए। सिंदूर वाला ही मैंने पहले सुनाया था फौजियों के लिए। जी अब हमारे स्वतंत्रता सेनानी जी ਉਹ ਕਿਹੜੀ परिस्थितियां चों निकले और सानू आज़ादी दी उन्होंने, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ अच्छा ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ये ਦੀਵਾਨੇ दिलचस्प है कि तुसी थोड़ा होर फ्लैशबैक च लेके जा रहे हैं कि 47 और उसके आसपास जो जी है। हाँ जी बिल्कुल, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਾਦ। ਬਹੁਤ ਬੜੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਕਿਵੇਂ। हाँ नहीं नहीं बिल्कुल, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਅਗਸਤ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਬਿਲकुल ਉਸ ਗਜ਼ਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਸ਼ੇਰ। जी जी जरूर। ਜਗਾਣੀ ਜੋਤ ਐਸੀ ਹਰ ਤਰਫ ਚਾਨਣ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। वाह, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਗਾਣੀ ਵਧੀਆ, ਜੋਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਐਸੀ ਹਰ ਤਰਫ ਚਾਨਣ ਫੈਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਨੇਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਹਨੇਰਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਮਿਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ। अच्छा है। ਬੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਤੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਸ਼ਿਖਰ ਹੈ। ਤੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਸ਼ਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ। वाह, ਇਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਸ਼ਾਰ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ। ਚੁਕਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੰਨ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। अरे वाह, क्या ਚੁਕਾ बात ਕੇ है, ਇਸ क्या ਦਾ बात ਕਰਜ਼ਾ है। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੰਨ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ। बहुत बढ़िया। ਔਰ ਇਹ ਗਜ਼ਲ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ। ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ। ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਜ਼ੁਲਮ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ जी ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਭ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਜਾਂ। ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਭ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸੇਜਾਂ। ਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। आजादी। ਸੂਲਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਔਰ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਜੇਕਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹਮਜ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਜੇਕਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। आजादी। वाह ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਕਾਲ ਕੋਠੜੀ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਸ ਫਲੈਸ਼ਬੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਗਏ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ, ਆਪਣੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਸੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਖੁਦੀਰਾਮ ਬੋਸ ਜੀ ਦਾ। 17-18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮਤਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਬਿਲਾਲ ਜੀ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਾਲ ਜੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ? जी गौरव जी, मेरी एक नज्म है, भारत इस नज्म का उन्वान है जी, और भारत की पूरी झलक मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। वाह, इरशाद। इरशाद इरशाद। जी, कि न पूछ हमसे कि हम कितना प्यार करते हैं, क्या बात। न पूछ हमसे कि हम कितना प्यार करते हैं, अमा वतन पे तो हम जान निसार करते हैं। क्या बात है, क्या बात। वाह, वाह, वाह। न पूछ हमसे कि हम कितना प्यार करते हैं, अमा वतन पे तो हम जान निसार करते हैं, वतन को याद रखा इस तरह दुआओं में, आहा, वतन को याद रखा इस तरह दुआओं दुआओं में, में। कमी ना आई कभी भी मेरी वफाओं में, क्या बात। कमी ना आई कभी भी मेरी वफाओं में, यूं मुश्किलों से तो दो चार होते रहते हैं, यूं मुश्किलों से तो दो चार होते रहते हैं, पर जान लुटाने को तैयार होते रहते हैं। क्या बात है, क्या बात। यूं मुश्किलों से तो दो चार होते रहते हैं, पर जान लुटाने को तैयार होते रहते हैं। और शेर देखें कि वतन की शान में कोई कमी ना आ जाए, आहा, वतन क्या की बात। शान में कोई कोई कमी ना आ जाए, कि माँ की आंख में हरगिज नमी ना आ जाए, क्या बात है। वतन क्या की बात है, शान में हमजा कोई भाई। कमी ना आ जाए, कि माँ की आंख में हरगिज नमी ना आ जाए। मगर ए दोस्त बहुत ही मलाल होता है, मगर ए दोस्त बहुत ही मलाल होता है, कि जब भी मेरी वफा पर सवाल होता है। क्या बात है। मगर ए दोस्त क्या बहुत ही बात, मलाल बहुत होता खूब, है, बहुत खूब। कि जब भी मेरी वफा पर सवाल होता है, हमारी राह में यूं खार भी बहुत आए, खार कांटे, हमारी राह में यूं खार भी बहुत आए, इसी जमी पे ही अवतार भी बहुत आए। अरे वाह, अच्छा। हमारी राह में यूं खार भी बहुत आए, इसी जमी पे ही अवतार भी बहुत आए, अच्छा है। इसी जमी पे ही अवतार भी बहुत आए, कि जब भी बात बढ़ी हमने युद्ध भी देखे, कि जब भी बात बढ़ी हमने युद्ध भी देखे, इसी जमीन पे नानक व बुद्ध भी देखे। क्या बात है, क्या कि बात। जब भी बात बढ़ी हमने युद्ध भी देखे, इसी जमीन पे नानक व बुद्ध भी देखे, और अमन से प्यार से जीना हम ही ने सिखलाया, अमन से प्यार से जीना हम ही ने सिखलाया, सबक भी इश्क का हमने ही सबको पढ़वाया, अमन से प्यार से जीना हम ही ने सिखलाया, सबक भी इश्क का हमने ही सबको पढ़वाया। दोस्तों, जब इश्क की बात होती है, प्रेम की बात होती है, तो लोग लैला मजनू का जिक्र करते हैं, रोमियो जूलियट का जिक्र करते हैं। मैं बताता हूं कि असली प्रेम इस दुनिया को किसने सिखाया है। ये शेर देखें कि अमन से प्यार से जीना हम ही ने सिखलाया, सबक भी इश्क का सबने ही हमको पढ़वाया, और जमी से सोना निकलवाया गंगा मैया ने। अरे वाह, जमी से सोना निकलवाया गंगा मैया ने, हमें तो प्रेम सिखाया है खुद कन्हैया ने। क्या बात है, क्या बात। जमी से सोना निकलवाया बहुत गंगा बढ़िया। मैया ने, हमें तो प्रेम सिखाया है खुद कन्हैया ने, हमें तो प्रेम सिखाया है खुद कन्हैया ने। ये प्यारा मुल्क है मीरा का और सीता का, हमें तो प्रेम सिखाया है खुद कन्हैया ने, ये प्यारा मुल्क है मीरा का और सीता का, यही मिला हमें उपदेश सार गीता का। क्या बात। ये प्यारा मुल्क है मीरा का और सीता का, यही मिला हमें उपदेश सार गीता का, और अमन का साथ दिया है रहे हो कैसे भी, अमन का साथ दिया है रहे हो कैसे भी, हमारे पास थे राजा अशोक जैसे भी, अमन का साथ दिया है रहे हो कैसे भी, हमारे पास थे राजा अशोक जैसे भी। और खिले तो फूल हैं डॉक्टर साहब, खिले तो फूल हैं, चल जाएं तो हम आंधी हैं। क्या बात है। खिले तो फूल हैं, चल जाएं तो हम आंधी हैं, हमारे पास भगत सिंह हैं और गांधी हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खिले तो बढ़िया। फूल हैं, चल जाएं तो हम आंधी हैं, हमारे पास भगत सिंह हैं और गांधी हैं। यहाँ पे होली दिवाली व ईद साथ में है, यहाँ पे होली दिवाली व ईद साथ में है,
यहाँ पे बत्रा और अब्दुल हमीद साथ में हैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही यहाँ पे बढ़िया। होली, बहुत दिवाली व ईद साथ में हैं। यहाँ पे, क्योंकि कैप्टन विक्रम बत्रा का जिक्र किया था गौरव जी ने कि यहाँ पे होली, दिवाली व ईद साथ में हैं, यहाँ पे बत्रा और अब्दुल हमीद साथ में हैं। और दुआ भी मिलती है हमको तो राम राम के साथ, दुआ भी मिलती है हमको तो राम राम के साथ, यहाँ पे भाभा भी मिल जाएंगे कलाम के साथ। क्या बात है, दुआ भी मिलती है बहुत बढ़िया, हमको बहुत तो बढ़िया, राम बहुत ही राम बढ़िया। के साथ, यहाँ पे भाभा भी मिल जाएंगे कलाम के साथ, हिफाजतों में हिमालय की रहते आए हैं। नज्म के कुछ शेर बस रह गए हैं कि हिफाजतों में दुआ भी मिलती है हमको तो राम राम के साथ, यहाँ पे भाभा भी मिल जाएंगे कलाम के साथ, और हिफाजतों में हिमालय की रहते आए हैं, हिफाजतों में हिमालय की रहते आए हैं। अहिंसा धर्म है बस यही कहते आए हैं, हिफाजतों में हिमालय की रहते आए हैं। अहिंसा धर्म है बस यही कहते आए हैं। और यूं दोस्त बन के हमें लोग मार जाते हैं, यूं दोस्त बन के हमें लोग मार जाते हैं, पर हम लड़े तो सिकंदर भी हार जाते हैं। क्या बात है, यूं दोस्त बन के हमें लोग मार जाते हैं। दुश्मन बन के हमारा सामना कोई नहीं कर पाया, जिसने भी वार किया है दोस्त बन के किया है, पीठ पीछे किया है। कि यूं दोस्त बन के हमें लोग मार जाते हैं, पर हम लड़ें तो सिकंदर भी हार जाते हैं। और जहान भर की दुआएं ही लेते जाएंगे, जहान भर की, यूं दोस्त बन के हमें लोग मार जाते हैं, पर हम लड़ें तो सिकंदर भी हार जाते हैं। जहान भर की दुआएं ही लेते जाएंगे, अमन का प्यार का पैगाम देते जाएंगे। क्या बात, अमन का प्यार का पैगाम देते जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार, खूब, बहुत भाई, शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूरा आपने महफिल को जमा दिया है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं हम, रवि जी और मैं गौत्रा जी का रुख करूंगा। रवि जी देखिए, मैं जो बिलाल साहब बोल रहे थे उसमें बहुत सारी चीजें हैं, हमने सबने महसूस की है कि एक तरह आपने पिरो दी बहुत सारी चीजें, और मैसेज भी है कहीं ना कहीं देश के दुश्मनों को। जो आपने कहा कि दोस्त बन के ही वार करते हैं, तो एकदम से मेरे दिमाग में आ रहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी गए हुए हैं, नवाज शरीफ वहां पर बस यात्रा शुरू कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है फरवरी 1999 में, और पता लगता है कि जून में कारगिल हो गया, कि पीठ के पीछे वार कर दिया, तो उसका भी जवाब दिया, और किस तरह से दिया हम सबने देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और महफिल को जमाएं। मैं एक गीत लेके आया हूँ जी, कि कई कारणों से जो हम भारतीय हैं, हमारे भारत के बच्चे हैं, उनको विदेश में जाना पड़ता है जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि विदेश में जाके देश के प्रति उनका मोह जो है वो कम हो जाता है। वो देश को बहुत याद करते हैं। एक गीत के माध्यम से मैंने ये कहने की कोशिश की है जी, जरूर। स्वागत है। कि प्रदेश में बैठा हुआ कोई युवक अपने देश को, अपने गांव को, अपनी मिट्टी को याद कर रहा है। मेरे वतन तुमको हजार सलाम, क्या बात है, आया है याद मुझे वो गाँव, बहुत खूब, बहुत खूब। वो नदिया, वो बरगद की छाँव, क्या बात है, वाह, मेरे वतन तुमको हजार सलाम। सुनिएगा। यार पुराने याद आए हैं, गुजरे जमाने याद आए हैं, तख्ती बस्ता याद आया है, स्कूल का रास्ता याद आया है, बहुत अच्छे। किवाड़ दरीचा याद आया है, बाग बगीचा याद आया है, वाह, सौंधी मिट्टी याद आई है, पहली चिट्ठी याद आई है, बस होती है सुबह, बस होती है सुबह, ढल जाती है शाम, आया है याद मुझे वो गाँव, क्या बात है, मेरे वतन तुझको हजार सलाम। बहुत अच्छे। बढ़िया रवि जी, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग जो आपको सुन रहे होंगे विदेशों में बैठकर भी, न्यूज़ 18 को बहुत सारे हमारे दर्शक अब्रॉड में भी देखते हैं,
बहुत सारे मैसेज आते हैं रवि जी हमारे पास। अच्छा, वो यहाँ क्या चल रहा है उनके गांव में, उनके इलाके में, उसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हम सारे खड़े हैं, कोई ना कोई हमारे भी परिवार का सदस्य बाहर आजकल है, कि खासतौर पर अगर आप पंजाब हरियाणा से ताल्लुक रख रहे हैं तो उनको बहुत दिलचस्पी होती है। अच्छा, वो ऐसे बंधे हुए होते हैं कि वो चाहते हैं कि बस अगली फ्लाइट लेकर हम पहुंच जाएं भारत। बस मजबूरियां कहिए या कुछ भी, कि यही सब कुछ वो कहीं ना कहीं अपने अंदर समेट कर बैठे होंगे। जो ये भी एक तरह से देशभक्ति है कि आप कहीं भी रहें लेकिन आपके जहन में आपका देश ऑल द टाइम रहता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। गोत्रा जी, एक मूवी आई, हम सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर रहे थे। सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर मूवी बनी, उसमें एक डायलॉग था, हाउस द जोश, बड़ा जबरदस्त और फेमस हुआ। तो थोड़ा सा अगर हम उस और भी बढ़े कि जोश को किस तरह से बांध के रखते हैं। आपने जिक्र कर दिया कि आप उस फैमिली से आते हैं, परिवार में आपने देखा है, जोश को किस तरह से बनाए रखते हैं और किस तरह से आप उसको महसूस करते हैं, अगर आप पंक्तियों के जरिए कुछ। देखिए जी, आई थिंक दिल्ली एक ऐसी जगह है जी, मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊंगा। ये बहुत बढ़िया, ये तो हम ऑलरेडी हिस्ट्री के ऊपर बहुत बात की है। दिल्ली एक ऐसी जगह है जो बहुत बार बसी है और उजड़ी है। जी बिल्कुल जी गौरव जी, बहुत मशहूर शेर है, शायर का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, कि दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है। दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जो भी गुजरा है उसने लूटा है। क्या बात है जी, इरशाद। तो ये इस पे जी, हजारों बार उजड़ी फिर भी बस गई। वाह, लेकिन ये दिल्ली बोल रही है, हजारों बार उजड़ी फिर भी बस गई, कितने ख्वाबों की तामीर रही हूं मैं दिल्ली हूं, यही हूं मैं। अरे वाह, दिल्ली नहीं कोई उजाड़ सकता, दिल्ली कोई नहीं उजाड़ सकता। और मैं दिल्ली हूं, यही हूं मैं। कभी तुगलक, कभी तैमूर, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, वाह, कई ताज बदले, कई तख्त पलटे, हर बार मिटकर नई हुई हूं मैं दिल्ली हूं, यही हूं मैं। बिल्कुल, अच्छा है, अच्छा है। अशोक और चौहान ने मेरा रूप संवारा था, लोधी ने, गजनवी ने फिर से मुझे उजाड़ा था। वाह, सदियों से ये जुल्म सहती रही हूं मैं, पर मैं दिल्ली हूं, यही हूं मैं। बहुत शानदार। लाखों लगाए बैठे हैं अब भी निगाह मुझ पर, आहा, लाखों लगाए बैठे हैं अब भी निगाह मुझ पर। वाह, बहुत अच्छा। फिर से ना लुटने देना है युवा ये आस तुझ पर, आहा, हजारों बलिदानों से आजाद हुई हूं मैं दिल्ली हूँ, यही हूँ मैं दिल्ली हूँ, यही हूँ मैं। जी बहुत शानदार, बहुत शानदार। अगर टाइम हो तो एक जी, मैंने प्लीज सर, प्लीज। पंजाबी में कुछ क्या कहने बात ये की। तो और बढ़िया। क्या बात है। सरहद उत्ते मरदे होए वीर सिपाही कहंदे ने, आहा, अच्छा है। सरहद उत्ते मरदे होए वीर सिपाही कहंदे ने, धरती माते वार देंगे जिन्ने भी सा रहंदे ने, अच्छा है। धरती माते धरती माते वार देंगे जिन्ने भी सा रहंदे ने, मेरे देश दे वल जो तक्के ਉਸ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਜੋ ਤੱਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਦਿਆਂ, ਲਹੂ ਡੋਲ ਕੇ ਉਸ ਪਾਪੀ ਦਾ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਰਾਂ। बहुत बढ़िया। 6 ਧਰਮਾਂ ਤੇ 121 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਜਦਾ ਏ, ਜਨਗਣ ਮਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਜਦਾ ਏ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ, ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। बहुत अच्छे। ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁਣ, आहा, ਚੰਦ ਤੇ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ। शुभांशु शुक्ला ਹਾਂਜੀ। ISS तिवारी। ਹਾਂਜੀ, ਚੰਦ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਨਾਮ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, वाह, ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਹੀਲਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਮਾਤੇ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਰਤੀ ਮਾਤੇ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। बहुत अच्छे। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਨਗਣ ਮਨ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾਲ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ 골ਡ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤ ਰਹੇ ਨੇ, तिरंगा ऊपर जा रहा है, जनगण मन बज रहा है, इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जित रही है, बहुत सारे प्लेयर्स ने, बहुत सारे ਜਿਹੜੇ ਖਿਤਾਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਔਰ ਰਵੀ ਜੀ। 2-4 शेर। जी जी जरूर इरशाद जी। आवे यारा
ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਕਿਣਕਾ ਮਹਿਕਾਈਏ। क्या बात। हाँ ਆਵੇ ਯਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਕਿਣਕਾ ਮਹਿਕਾਈਏ, ਹੂੰਜ ਹਾਂਜ ਕੇ ਹਨੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਆਈਏ। क्या वाह, बात है, वाह, क्या वाह। बात है। ਹੂੰਜ ਹਾਂਜ ਕੇ ਹਨੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟ ਆਈਏ, ਔਰ ਆ ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕਰੀਏ, ਛਾਈਆਂ ਰਹਿਣ ਬਹਾਰਾਂ। अरे वाह, अच्छा है। क्या बात। ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕਰੀਏ, ਛਾਈਆਂ ਛਾਈਆਂ ਰਹਿਣ ਬਹਾਰਾਂ। ਬਹਾਰਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਵੰਡੀਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ, ਸਭ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਈਏ। अरे वाह, क्या बात अच्छा है, अच्छा ਇਹ है। ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਭ ਨੂੰ ਵੰਡੀਏ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ, ਸਭ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਈਏ, ਔਰ ਰਹੇ ਸਲਾਮਤ ਛਾਂ ਬੋੜਾਂ ਦੀ, ਕਰੀਏ ਸਦਾ ਦੁਆਵਾਂ। क्या बात। ਰਹੇ ਸਲਾਮਤ ਛਾਂ ਬੋੜਾਂ ਦੀ, ਕਰੀਏ ਸਦਾ ਦੁਆਵਾਂ, ਤੂਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੀਏ ਗਾਈਏ। क्या बात है, ਤੂਤਾਂ क्या ਵਾਲੇ बात ਖੂਹ ਤੇ है। ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੀਏ ਗਾਈਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼, ਆਲਣਿਆਂ ਚੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਅਲਾਪਣ ਬੋਟ ਹਮੇਸ਼ਾ। आए हाय क्या हाय, बात है, बहुत खूबसूरत। ਆਲਣਿਆਂ ਚੋਂ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਅਲਾਪਣ ਬੋਟ ਹਮੇਸ਼ਾ, वाह, ਮੌਸਮ ਠੀਕ ਰਹੇ ਨਿਤ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਬਣਾਈਏ। अरे क्या वाह, बात, अच्छा क्या है, बात। बहुत बढ़िया है। ਨੇਰੇ ਨੇ ਜੋ ਅੱਤ ਮਚਾਈ, ਚਾਨਣ ਖੁੰਝੇ ਲਾਇਆ, ਉਜੜੇ ਪੁਜੜੇ ਹਰ ਵੇ ਵਿੱਚ, ਉਜੜੇ ਪੁਜੜੇ ਹਰ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਫੇਰ ਜਗਾਈਏ। क्या बात। ਉਜੜੇ ਪੁਜੜੇ ਹਰ ਵੇੜੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵੇ ਫੇਰ ਜਗਾਈਏ। ਆਵੇ ਯਾਰਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕਿਣਕਾ ਮਹਿਕਾਈਏ, ਹੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਕੇ ਨੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਕਿਤੇ ਸੁਟਾਈਏ। ਹੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਕੇ ਨੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਸ਼ਾਨਦਾਰ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। बहुत बढ़िया, क्या बहुत बात। बढ़िया। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਪੂਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਬਿਲਾਲ ਜੀ ਔਰ ਰਵੀ ਜੀ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ। यदि वक्त है तो जी, एक, जी, जरूर, एक जरूर सर। मेरी कविता है, जी, उस कविता का शीर्षक है फौजी। बहुत बढ़िया। कि सबका प्यारा था वो, कि सबका प्यारा था वो, गांव भर का दुलारा था वो, पढ़ने में होशियार था, यारों का भी वो यार था। थी बचपन से मन में उमंग, कि थी बचपन से मन में उमंग, वतन प्रस्ती का था उस पे रंग। पढ़ लिख कर बड़ा हो गया, इरादा और उसका कड़ा हो गया। चाहता था फौजी बनूं, सेवा वतन की मैं अपने करूं, भर्ती सेना में हो जाऊंगा, देश के मैं तो काम आऊंगा। माता पिता से ली अनुमति, योगी जी, गौरव साहब, कि माता पिता से ली अनुमति, सेना में चला होने वो भर्ती। हुनर अपना दिखला दिया, वर्दी को उसने अपना लिया। उस पे जचती थी वर्दी बड़ी, कि उस पे जचती थी वर्दी बड़ी, जैसे उसके लिए ही बनी। जब छुट्टी पे घर आया था, सारा गांव ही तो हर्षाया था। बहुत अच्छे। माँ बाप को खुश देखकर वो भी मंद मंद मुस्काया था। फिर अचानक खबर ये आई, फिर अचानक खबर ये आई, सीमा पर छिड़ गई है लड़ाई। डाकिया तार लाया था, सीमा पर उसको बुलाया था। मन में लेके हर्ष और उल्लास, कि मन में लेके हर्ष और उल्लास, ले उमंग और आत्मविश्वास। फर्ज अपना निभाने चला, सबक दुश्मन को सिखाने चला। बहुत अच्छे। रण में जौहर दिखला दिए, टैंक दुश्मन के उड़ा दिए। रणभूमि बनी थी अंगार, और सटीक थे उसके प्रहार। फिर अचानक से गोलियों की बौछार, लिया छाती पे उसने हर वार। फिर रणभूमि में वो खो गया, अपनी मिट्टी में वो सो गया। लिप्त तिरंगे में घर आया था, कि लिप्त तिरंगे में घर आया था, साथ शौर्य गाथा लाया था। युगों तक रहेंगे अमर, कि युगों तक रहेंगे अमर, माँ भारती के ये रणकुंवर। भारत माता की क्या बात। जय, भारत माता की जय। जय। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰਵੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਬਿਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਗੋਤਰਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿੱਥੋਂ ਕਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੀ, ਔਰ ਇਰਸ਼ਾਦ, ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਇਰਸ਼ਾਦ। ਖੁਦ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ
ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਦਮ ਮਿਲਾकर चलना होगा, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। क्या बात। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਵੇ ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।